Question number 6. 3 coins A, B, C are each thrown once. Coin A and B are each biased so that probability of obtaining a head is 2/3. The probability of head for coin A and B both are 2/3. ये हेड की प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो ए और बी कॉइन्स के लिए टेल की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1/3 होगी. फॉर कॉइन्स ए एंड बी फॉर बोथ the probability of head is 2/3, and for both coins A and B probability of tail will be 1/3. Probability of head for both is 2/3. Probability of tail for both is 1/3. Now for C, coin C is biased so that probability of obtaining a head is 4/5. Probability of head is 4/5. This shows that probability of tail for coin C will be 1/5. So part A is show that probability of obtaining exactly 2 heads and 1 tail is 4/9. Exactly 2 heads and 1 tail. There are 3 coins A, B and C. These 3 coins are in sequence. Let the sequence is this. Sequence is A, B, C. 2 heads probability find करनी हमने. Exactly 2 heads 1 tail. So there are different options. तो sequence भी यही होगी. First option will be head, exactly 2 heads 1 tail, HHT, और या दूसरी ऑप्शन ये भी हो सकती है probability of head tail head. यहाँ पे देखें 2 heads 1 tail, 2 heads 1 tail. Next will be probability of tail head head. यहाँ भी 2 heads और 1 tail. तो first head is for A, second head for B, and for C there is tail. In the same way A के लिए यहाँ पे ये सीक्वेंस हमने यूज करना है. A, B and C, 3 coins are there. This is for A coin. The next B for B coin के लिए tail है और C coin के लिए head है. इसी तरह यहाँ पे tail जो है ये coin A की है, यहाँ पे head जो है ये B का है और head C का है. तो so we will write here the probabilities. Head probability, head की probability A की है हमारे पास. It is given 2/3. तो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा. हेड फॉर बी, दूसरा एच जो है वो फॉर बी है, उसके लिए भी प्रोबेबिलिटी 2/3 है. बट फॉर सी द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल विल बी 1/4. ये हेड की प्रोबेबिलिटी है सी के लिए, तो टेल की प्रोबेबिलिटी 1/5 होगी. तो सो वी राइट हियर 1/5. इन द सेम वे फॉर नेक्स्ट ऑप्शन हेड की प्रोबेबिलिटी 2/3 है. 2/3 फॉर बी. टेल की प्रोबेबिलिटी जो है 1/3 है. हेड की प्रोबेबिलिटी फॉर सी इट इज गिवन 4/5. तो यहाँ पे हम 4/5 लिखेंगे. 4/5. नो नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट ऑप्शन टेल फॉर ए, एज फॉर बी, एज फॉर सी. टेल की प्रोबेबिलिटी फॉर कॉइन ए विल बी 1/3.
3, हेड की प्रोबेबिलिटी 2/3। नो लास्ट एज इज फॉर पॉइंट सी, उसकी हेड की प्रोबेबिलिटी दैट इज गिवन 4/5। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर जो है ये आएगा 4/45। नेक्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है 8/45। फॉर द लास्ट ऑप्शन 8/45. Now we will add up these fractions. So finally we get 20/25, 20/45। दैट इज, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाता है 5 पे। 20 and 45 are the multiples of 5, so we can divide numerator and denominator by 5, we get फाइनली 4/9। ये हमने शो कर दिया है। ये हमने शो करना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स एंड 1 टेल इज 4/9। दिस इज शोन। Now next part of this question is a random variable x is the number of heads obtained when 3 coins are shown. This part is of discrete random variable. Random variable is x, that shows the number of heads. x क्या है? x is the discrete random variable that shows the number of heads obtained. आपने तीनों कॉइन्स को थ्रो करना है, आपने हेड्स देखना है कि हेड कितने कॉइन्स पे आ रहा है। When 3 coins are thrown, draw up the probability distribution table for x. हमने probability distribution table जो है वो ड्रा करना है, जिसको हम नॉर्मली PDF probability density फंक्शन भी कह देते हैं। वो उसके लिए हम वो टेबल बनाएंगे। दिस इज द टेबल। Here is x and here is the probability of x. X is the discrete random variable. So when we throw these 3 coins A, B, C, तो यहाँ पे देखना है कि x की हेड्स कितनों पे आ सकता है। या तो हेड नहीं आएगा तीनों पे, या हेड एक हो सकता है, या हेड 2 हो सकते हैं, या हेड तीनों के तीनों भी, तीनों कॉइन्स पे भी तीनों कॉइन्स पे हेड ही हो सकते हैं। तो सो x will take these values when we throw 3 coins A, B, C। या तो इन तीनों पे हेड नहीं होगा, तीनों पे टेल्स होंगी, या हेड हमारे पास सिर्फ एक कॉइन पे हो सकता है, या हेड 2 हो सकते हैं, या all the 3 coins, all the 3 are heads. So x can take these values 0, 1, 2 या 3। Now we write here the probabilities against each 0, 1, 2, 3। यहाँ पे इनकी probabilities लिखेंगे। 0 probability 0 is these values of x shows the number of heads. Number of heads 0 head mean all the tails on the on all 3 coins there are tail। टेल की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी? हेड 0 है, इसका मतलब तीनों टेल्स हैं, तो तीनों टेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हेड इज 0। हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो है वो क्या है? वो हेड है। तो 0 हेड मीन कि तीनों पे टेल्स होंगे। टेल फॉर ए इज प्रोबेबिलिटी गिवन 1/3, 1/3। और सी कॉइन के लिए हेड की प्रोबेबिलिटी जो है, सॉरी, हेड की प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज
सॉरी, ये तीनों टेल्स हैं, जीरो हेड है। दिस जीरो शोज कि तीनों कॉइन्स पे टेल्स हैं। टेल की प्रोबेबिलिटी 1/3 ए के लिए, दूसरे के लिए भी, बी के लिए भी 1/3, और सी कॉइन के लिए टेल की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/5 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 1/45। so we write here 1/, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/45। so next is 1 when head is 1, तो 1 हेड की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं। 1 हेड हो तो ये सिचुएशन होगी, probability of 1 head, this shows that head, टेल भी हो सकता है, या टेल हेड, टेल हो सकता है, या हो सकता है टेल टेल हेड। ये देखें तीनों ऑप्शंस में हेड एक दफा है, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। तो सो वी राइट हियर द प्रोबेबिलिटीज। हेड टेल, टेल की प्रोबेबिलिटी 2/, ए के लिए हेड की प्रोबेबिलिटी 2/3, टेल की प्रोबेबिलिटी बी के लिए 1/3, टेल फॉर सी इज 1/5, सेकेंड ऑप्शन टेल फॉर ए इज 1/3, head for B is 2/3, and tail for C is 1/5. Third option tail head. Tail is for A is 1/3, for B tail is 1/3, and head for C is 4/5. When we calculate this, इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो we get, तीनों ऑप्शंस को ऐड कर देंगे कैलकुलेट करके, वी गेट 8/45। तो सो 1 हेड की प्रोबेबिलिटी 8/45 है। 8/45। नो फॉर 2 हेड्स के लिए इसी तरह हम फाइंड कर लेते हैं। 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज एग्जैक्टली 2 हेड्स जो है उसकी प्रोबेबिलिटी हमने ऑलरेडी पार्ट ए में फाइंड कर चुके हैं। 4/9 आंसर है, बट वी आर नॉट टेकिंग दिस सिंपलेस्ट form. We are taking 20/45 because denominator in all the fractions are 45, क्योंकि हम यहाँ पे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम लाना चाहते हैं। तो सो वी आर टेकिंग 20/45। तो वी राइट हेयर 20/45। नेक्स्ट फॉर 3 हेड्स के लिए प्रोबेबिलिटी होगी, 3 हेड्स के लिए प्रोबेबिलिटी फॉर 3 हेड्स वो हेड हेड हेड। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड हेड, तीनों कॉइन्स पे हेड हो तो वो प्रोबेबिलिटी होगी 2/3 फॉर ए, फॉर बी अगेन 2/3, फॉर सी कॉइन के हेड की प्रोबेबिलिटी 4/5 है। तो सो इनको कैलकुलेट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट 16/45। 16/45। So we write here head on all the 3 coins, 3 की प्रोबेबिलिटी जो है 3 हेड की 16/45। अब हमने इस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को चेक करना है कि ये हमने सही ड्रा किया या ये रॉन्ग है। तो हम इन प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो 1 होना चाहिए। तो अब इन प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड कर लेंगे तो 1 ही आता है। तो इसका मतलब है ये पीडीएफ जो है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है, ये करेक्ट बन गया है। नाउ फॉर द नेक्स्ट पार्ट सी, EX जो होता है इस चैप्टर में, EX डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में EX शोज द मीन वैल्यू ऑफ X। EX shows the expected for expected value of X, mean value of X. Mean is given 32/15,
but we have to find variance of x. Variance of x क्या होता है? Spreadness of the variable. So formula for variance is variance of x in discrete random variable will be variance of x. This short form में variance है, full word तो VAR लिख लेते हैं, variance of x. This is formula E x square minus EX whole square. अब हमारे पास EX जो है दैट इज गिवन 32/15, यहाँ पे उसका स्केयर ले लेंगे, बट वी नीड EX स्केयर. EX स्केयर कैसे फाइंड करेंगे? EX स्केयर हम ऐसे फाइंड कर लेंगे, EX स्केयर विल बी समेशन x स्केयर इंटू PX. आपने प्रोबेबिलिटी को, हर नंबर की प्रोबेबिलिटी को x स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करना है. x ये PDF हमने ऑलरेडी बना लिया है, तो यहीं पे हमें x स्केयर चाहिए, तो हर वैल्यू का हम स्केयर लेंगे. तो इसी टेबल पे हम इसको बना लेते हैं. जैसे हम यहाँ पे बना लेते हैं. दिस इज PDF. यहाँ पे x है, x will take 0, वैल्यू 0, 1, 2, 3. तो ये पहले ही हमने बनाया हुआ है. 1/0 की प्रोबेबिलिटी जो है 1/45 है. यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x लिख लेंगे 1/45. 1 की प्रोबेबिलिटी जो है 8/45. नेक्स्ट 2 की प्रोबेबिलिटी 20/45. Probability of 3 is 16/45. Now we have to find x square. x square means पहली वैल्यू जो है x की 0 है, तो इसका स्केयर क्या होगा? 0. 1 का स्केयर क्या होगा? 1. 2 स्केयर इज 4. 3 स्केयर is 9. So to find EX स्केयर, x स्केयर को हमने PX के साथ मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है. x स्केयर को PX के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. x स्केयर इज दिस एंड PX इज दिस. मल्टीप्लाई करके हमने इनको ऐड कर देना, तो सो वी कैन फाइंड EX स्केयर. तो सो EX स्केयर विल बी, x स्केयर को PX के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट जो है वो 1/45 इंटू 0 दैट इज 0, प्लस अब हम करेंगे मल्टीप्लाई x स्केयर 1 को 8/45 से, दैट इज 8/45. नेक्स्ट इज 4 को करेंगे 20/45 से मल्टीप्लाई, दैट इज 80/45. नेक्स्ट इज 16/45 multiplied by 9, that is 144/45. 144/45. Now we will add these fractions. We get 232/45. This is the value of E
x square. Now we will put here the value of ex square जो है वो 232/45 है, वो यहाँ पे लिख देंगे, और ex की वैल्यू हमें given है, that is 32/45. Now we will put these values in this formula, so we get the variance of x will be 232/45 minus square of the mean. Mean is 32/15 square. मीन इज 32/15, उसका स्केयर है फार्मूला में, तो स्केयर ले लेंगे यहाँ पे. तो वी गेट 232/45. 32/15 का स्केयर है 1024/225. फाइनली हम दोनों को हम ऐड करेंगे, तो फाइनली वी गेट 136/225. that is correct to three significant figure. We get 0.604. This is the final answer correct to three significant figures.